Very good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Myself, Animesh Jain, and today I am going to take you one very interesting topic. Almost last time we have already studied in 6th standard, chapter 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. Our part 1 is over. Now, the second part. In first part, we have studied primitive man, nomadic life, and place of human habitation of primitive men in India. And now, today, we will study about the map of Stone Age human habitation in India. Okay. So students, here one map it is given in your book, page number 7, map of Stone Age human habitation in India. Okay, this is the archaeological places where the primitive men were settled at that times. Okay, some more map we will look after that. Here you can see the map India at the time of Stone Age. Here properly map it is given, and here you can know about the sign where the rocks and cave, middle Stone Age. Okay, this all you can see, and almost you have know about that what type of utensils, weapons they were using. Here almost we have studied. So this is some about the map. Okay, so look carefully at the place marked in the map. You will find that at many places of India the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitat in many places in India. Okay, students, मैप में हम देख सकते हैं वो कहाँ रहते थे, कैसे उनका हैबिटेशन, कहाँ पे क्या उनका केव था, कौन सा एज था. ओके, सो दे प्रिफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन, वुड एंड वाटर वेयर फाउंड. वो कहाँ रहना पसंद करते थे? जहाँ लकड़ी हो, पत्थर हो, पानी हो, सुविधा जो है उनको उस हिसाब से मिले, उस जगह पे वो रहना पसंद करते थे. दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. और बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए वो जो नेचुरल केव्स होते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल केव्स में वो रहते थे. सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या mountains in central India. Such type of place have also been found in the region around Narmada river. भीमबटका मीन्स मध्य प्रदेश, और जो है नर्मदा नदी के किनारे जो है ये आप केव्स वहाँ पे आप देख सकते हो. मध्य प्रदेश जो है भीमबटका एक प्लेस है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. वहाँ पे जो है केव्स आज भी बनी हुई है. विच वॉज एन excellent place of human habitation in its caves. Near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, humans, etc. drawn by the primitive man have been found. And students, उनके जो लिखावट है, बर्ड्स के पिक्चर्स हैं, वो सब भी आप वहाँ पे जो है देख सकते हो. which are drawn with the help of natural colors. अभी के टाइम पे वो कैसा होता है कि कलर्स जो है वो केमिकली प्रिपेयर्ड होता है, बट जो है ये नेचुरल कलर का जो है यूज़ करके इन्होंने जो केव्स में डिज़ाइन वगैरह बनाई हुई है. ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज द मैप ऑफ स्टोन एज. ओके, नाउ Cave of Bhimbetka. Discovery of fire and wheel and their uses. Discovery किस चीज़ की थी? आग, फायर एंड व्हील और उसके यूजेस.
Okay, here one picture it is given, cave of Bhimbetka. So it is not clear image I will show you. This is the clear image. Here you can see cave of Bhimbetka, okay, near Madhya Pradesh. Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire. स्टूडेंट्स, जो एशेस थे, जो राख वगैरह जो है उस समय की जो है मिली थी, और पता चलता था कि हाँ ये लोग जो है फायर से क्या थे, फैमिलियर थे. एज पर हिस्टोरियंस अप्रोक्सीमेटली 11,000 years ago humans started using fire. Use of fire had revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. स्टूडेंट्स, 11,000 साल पहले उन्होंने फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. पहले जो है वट एवर जो खाना खाते थे, जो मांस वगैरह खाते थे, वो कच्चा खाते थे. फायर का जो है उन्होंने इन्वेंट किया, उसके बाद उन्होंने पका के जो है खाना स्टार्ट किया, और एनिमल्स से बचने के लिए भी वो यूज़ करने लगे फायर को. ओके, नाउ चेंजिंग एनवायरनमेंट. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. So अचानक जो है वातावरण जो है बदला, वहाँ का एटमोसफियर बदला. अराउंड 12,000 years ago, due to increase in temperature, vegetation and grass fields started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals, herbivorous animals like deer, sheep, goat, etc. increased. स्टूडेंट्स, क्या हुआ, एनवायरनमेंट सडनली वहाँ पे चेंज हुआ, हरियाली छा गई बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, और जो ग्रास ईटर एनिमल्स थे, जो हार्बिवरस एनिमल्स थे, उनका जो है वो एनिमल्स इंक्रीज होने लगे. सो प्रिमिटिव मैन सेंट्रली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट, और प्रिमिटिव मैन को क्या उसका बेनिफिट मिलने लगा. दे स्टार्टेड studying these animals behavior and thus their mental development started. और वो उन एनिमल्स को समझना और फिर कैसे उनका यूज़ लेना वो सब स्टार्ट हो गया. दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशंस एज वेल एज wheat, barley and other grains due to climate change. पहले तो क्या करते थे, मांस वगैरह जो है खाते थे, कहीं पे भी घूमते रहते थे, और सडनली एटमोसफियर एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ, ग्रास ईटर्स जो है फिर ये भी जो है घास वगैरह खाने लगे, उनको वीट, बार्ली, ग्रेन्स वगैरह भी जो है मिलने लगा, और वो अपनी लाइफ को जीने लगे. बाय यूजिंग स्टोन्स, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स. बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टेंट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. और इसी के साथ जो लेडीज़ वगैरह क्या करती थी, ग्रेन्स को जो है बचाने लगी, और उसी साथ साथ जो है फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया. पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स. दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस मेड अप ऑफ मड, टेथ मीन्स hay and other materials in the nearby areas. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो लोग फिर खेती बाड़ी में जो है रुचि रखने लगे, बिकॉज फार्मिंग से जो है उनको सारे जो है ग्रेन्स, ग्रास सब मिलने लगा. रिवर के पास में ही जो उन्होंने अपना एक हैबिटेट, अपना हाउस वगैरह बना दिया, जो घास से या मड से जो है बनता था. एज द रिजल्ट ऑफ इट देयर nomadic life came to an end and started a settled life. फिर क्या हुआ, पहले जो घूमते रहते थे या उसकी तलाश में, पानी की तलाश में, यहाँ वहाँ भटकना,
फिर क्या हुआ, वो एक सेटल्ड हो गए, सेटल्ड लाइफ उनकी स्टार्ट हो गई एक ही जगह पे. सो द फर्स्ट components or fried of his settled life was a dog. Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they started adjusting with them too. और स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ, और भी जो है जो हार्बीवरस एनिमल्स थे वो भी जो है वहाँ आने लगे और उन्हीं के साथ वो हैबिटेट हो गए, आदत सी हो गई. ओके, सो जनरली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. थस दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो अलॉन्ग विद फार्मिंग. और स्टूडेंट्स फार्मिंग के साथ साथ एक एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को पालना, उनके साथ रहना, वो भी जो है वो सीख गए. हाउ एवर research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. उसके बाद दूध जो है कैसे उन्हें मिलने लगा, कैसे उनको जो है इसके बारे में पता चली, वो सब एनिमल्स को एनिमल हस्बेंड्री के ज़रिए उन्हें पता चला. ओके स्टूडेंट्स, सो this was today's our topic, changing environment and discovery of fire and wheel and their uses. Later on some more topic we will study, so just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.